Okay, today we have to look at concentric heat exchanger. Concentric pipe heat exchanger we have in our lab. This is from Addicon. We have to look at the major parts of the equipment and how to perform the experiment to get the required result. The objective of the experiment is that you have to basically calculate the heat transfer between the hot and cold water, and you have to calculate the effectiveness of the heat exchanger and the global heat transfer coefficient, that is U. These are some parameters you have to look at while doing the calculations. Okay, so let's look at the apparatus. ये हमारे पास राइट साइड में जो आपको नज़र आ रहा है, this is a steel tank. इसके अंदर मीटर लगा हुआ है जिसकी मदद से पानी को जो है आपने हीट अप करने, and then there is a pump, ठीक है, to transfer the hot water in the concentric pipe heat exchanger. और राइट साइड वाला मॉड्यूल आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड वाला मॉड्यूल सेपरेट है और राइट साइड वाले मॉड्यूल जो है वो आपके पास सेपरेट है. राइट साइड वाला मॉड्यूल दैट इज बेसिकली द कंट्रोल, डिफरेंट वॉल्व्स आर हियर, and on the left side this part is the concentric pipe heat exchanger. We can replace this part with the shell and tube heat exchanger. We have the other apparatus in our lab, so basically we can unmount this part and install the shell and tube heat exchanger. That is another experiment. Okay? We have to perform this experiment in two configuration: parallel flow configuration and counter flow configuration. First of all, we will look at the parallel flow configuration. What we have to basically make some arrangements to basically change the flow direction. उसके लिए हमारे पास चार वॉल्स हैं जिनकी डायरेक्शन को हम कंट्रोल करके फ्लो को पैरेलल और काउंटर के दरमियान स्विच कर सकते हैं. सबसे पहले कंट्रोल पैनल पे आ जाए. कंट्रोल पैनल पे आपको दो डिस्प्ले नज़र आ रहे हैं और दो आपके पास स्विच हैं, एंड देयर इज अ सेंसर सिलेक्टर knob. This is the main power switch, the red one, and this one is the pump power on and off. तो इसकी मदद से आप पंप को ऑन ऑफ कर सकते हैं. और ये जो आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ ST16. दिस इज़ द टेम्परेचर सिलेक्टर फॉर हॉट वाटर. इसको आप यहाँ से जो हॉट वाटर का जो टेम्परेचर है टैंक के अंदर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. राइट नाउ इट्स एट 55 डिग्री सेल्सियस. आई विल सेट इट एट 45 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो जब 45 डिग्री सेल्सियस पे मैंने इसे सेट कर दिया, अब क्या होगा कि जैसे ही हॉट वाटर टैंक के अंदर पानी का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये जो हीटर है ये ट्रिप कर जाएगा. राइट नाउ यू कैन सी देयर इज अ LED लाइट हियर. जब तक आपका हीटर जो है वो स्विच मतलब चल रहा है, ठीक है, और टेम्परेचर 45 पे रीच नहीं हुआ तो यू कैन सी दिस रेड लाइट हेयर. ठीक है, जैसे ही आपका टेम्परेचर अचीव होगा, यहाँ पे 45 टेम्परेचर अचीव हो जाएगा, उसके बाद आपके पास ये रेड लाइट है ये ऑफ हो जाएगी. ठीक है, इंडिकेटिंग दैट द हीटर इज नाउ स्विच्ड ऑफ. Okay, on this panel you can see this is the temperature display. You can select different temperature ST1 to ST12 here. ST1 इस टाइम जो आपको इंडिकेट कर रहे हैं नॉब से वो 32 है. ST2 आपके पास 34 एंड ST3 आपके पास 34, ST4 36. You can read the different temperatures from this control panel. Okay. So these are basically the main control on the control panel. These wires are from the sensors. Coming on the left side, okay, you can see there are two flow meters. यहाँ पे आपके पास रोटोमीटर लगे हुए हैं दो, एक हॉट वाटर के लिए और दूसरा आपके पास कोल्ड वाटर के लिए. This one indicates the flow rate in liter per minute of the hot water, and this one indicates the flow rate of cold water in liter per minute. You can look at this scale. यहाँ पे आपके पास एक बॉल नज़र आ रही है. That is, you have to read this flow rate from the top. Okay, you can see this is liter per minute from the top. So right now I can see the flow rate is 1.45. Okay, this is between 1.4 1.6, and this is the first line, so it's about 1.45 or 1.4, close to 1.4. Okay, this is the flow rate of hot water in liter per minute, and the cold water flow rate I can read it's 1.75. Okay, these are two
temperature flow rate measuring rotometers available here in the equipment. Okay, now we will look at the two paths, the hot water path and the cold water path. इसमें हमने क्या करना है, पहले पाथ को ट्रेस कर लेते हैं, हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, एंड देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द एक्सपेरिमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्रेस द पाथ ऑफ हॉट वाटर. ये आपके पास टैंक है जिसके अंदर आपके पास पानी जो है इसको फिलअप कर लिया आपने पहले एक बार पानी से फिलअप करने के बाद यू हैव टू टर्न ऑन द हीटर एंड देन दिस इज द पंप. ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप अवेलेबल इन द इक्विपमेंट. what is the function of this pump? This pump will provide the necessary energy to the water for the circulation. Okay, so you can see there कि पानी यहाँ से आएगा आपके पास, जो hot water है वो यहाँ पे this will provide the energy, और C1 पाइप से होता हुआ आपके पास this one and intermediate pipe, right? इस पाइप के अंदर एंटर होगा. यहाँ से आपको डायग्राम नज़र आ रही है, यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द स्कीमेटिक डायग्राम कि C1 से आपके पास हॉट वाटर एंटर होगा एंड देन मूविंग थ्रू दिस वन एट C4 से आपके पास जो हॉट वाटर है दैट्स वो आपके पास एग्जिट है, एंड द कोल्ड वाटर C2 से आपके पास एंटर होगा और C3 से उसकी जो है एग्जिट है आपके पास. एंड देयर आर 3 टेम्परेचर सेंसर्स ऑन हॉट वाटर, ST1 एंड ST2 एंड ST3. तो ST1 और ST2 आपको हॉट वाटर का टेम्परेचर देंगे इनलेट पे, और आउटलेट पे ST2 जो है वो इंटरमीडिएट पॉइंट पे आपके पास टेम्परेचर है, जबकि ST4, 5 एंड 6 दीज आर द टेम्परेचर्स ऑन सेंसर्स ऑन द कोल्ड वाटर. सो ST4 आपके पास कोल्ड वाटर का इनलेट, ST5 फॉर द इंटरमीडिएट टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड वाटर एंड ST6 फॉर द एग्जिट. दिस इज़ फॉर द पैरेलल फ्लो, यानी पैरेलल फ्लो में आपका हॉट वाटर कोल्ड वाटर का इनलेट ये होगा और एग्जिट ये होगा, जबकि काउंटर फ्लो में आपके पास ये इनलेट हो जाएगा और ये एग्जिट. जो आपके पास हॉट वाटर की सर्कुलेशन है वो इंटरमीडिएट पाइप से ही है आपके पास. ठीक है, ओके, नाउ कम टू दिस इक्विपमेंट. ठीक है, थोड़ा सा दूर से करें ताकि नज़र आए ना, पूरा नज़र आ जाए. अच्छा, यहाँ से आप देखें कि यहाँ से आपके पास हॉट वाटर एंटर होगा. ये पाइप आपके पास इसका डायमीटर कम है और इसका डायमीटर ज़्यादा है. बेसिकली क्या है कि आपके पास जो हॉट वाटर पाइप है वो इस जो लार्जर डायमीटर पाइप है उसके अंदर सर्कुलेट और उसके अंदर मूव कर रहा है, बट बोथ हैव द सेम सेंटर. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द कंसेंट्रिक पाइप हीट एक्सचेंजर. ये आउटर पाइप के अंदर आपके पास कोल्ड वाटर सर्कुलेट कर रहा है. तो यहाँ से आपके पास पहले हॉट वाटर पे आ जाए, हॉट वाटर यहाँ से आएगा आपके पास. ठीक है, इंटरमीडिएट जो इनर पाइप है उसके अंदर मूव करेगा एंड देन दिस इज हेयर. इस एंड से आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट एंड C4 यहाँ पे आपके पास आ गया. C4 के बाद मूविंग एट दिस पॉइंट, दिस इज़ द वॉल एट दिस पॉइंट. ठीक है, यहाँ से C4 से होता हुआ आपके पास ये आपके पास कंट्रोल वॉल्व है जिसकी वजह से आप जो हॉट वाटर का जो फ्लो रेट है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, एंड यू कैन रीड द वैल्यू ऑफ द फ्लो रेट फ्रॉम दिस rotometer. Okay, so I can increase or decrease the flow rate of the hot water using this control valve. और उसके बाद आपके पास जो hot water है वो वापस टैंक के अंदर चला जाएगा, यानी आपके पास जो hot water का जो सर्कुलेशन है वो आपके पास क्लोज लूप है. ठीक है, hot water मूव करेगा. ठीक है, ट्रांसफरिंग इट टू द कोल्ड वाटर एंड देन कमिंग बैक अगेन टू द टैंक. ओके, सो ये आपके पास क्लोज लूप हो गया हॉट वाटर के लिए. अब आते हैं क्लोज और जो कोल्ड वाटर है उसका इनलेट और एग्जिट कहाँ पे आपके पास, यू कैन सी दिस इज द वाटर इनलेट. ठीक है, और एट द स्टार्ट थोड़ा सा दूर से बनाए ताकि नजर आए. अच्छा, एट द स्टार्ट ऑफ कोल्ड वाटर के इनलेट भी आपके पास एक कंट्रोल वॉल लगा हुआ है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, इसके फ्लो रेट को कंट्रोल कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट टू द कंट्रोल वॉल देयर इज अ प्रेशर रेगुलेटर जो आपके पास जो ताकि प्रेशर खास लिमिट से एक्सीड ना करे उसके लिए यहाँ पे प्रेशर रेगुलेटर है. उसके बाद आपके पास है यू कैन सी दिस इज द फ्लो मीटर टू मेजर द फ्लो रेट ऑफ द कोल्ड वाटर, एंड देन एट दिस पॉइंट यू कैन सी देयर आर 2 paths. ठीक है, you can either move on the left side or on the right side. ठीक है, आपके पास 2 वॉल्व है. राइट नाउ the valve on the right side is open and the valve on the left side is closed. तो अभी जो कॉन्फ़िगरेशन सेट की गई है दैट इज़ फॉर द पैरेलल फ्लो कॉन्फ़िगरेशन, इस वजह से आपके पास ये वॉल्व ओपन है. लेकिन फॉर काउंटर फ्लो आई विल ओपन दिस वॉल्व. ओके, यू विल सी व्हाई. ओके, राइट नाउ I'll go for the parallel flow configuration.
ठीक है, यहाँ से आपके पास कोल्ड वाटर आएगा और उसके बाद यहाँ से होता हुआ आपके पास C2 पाइप के अंदर क्या होगा, आपके पास एंटर होगा एंड C2 पाइप के थ्रू आपके पास यू कैन सी ये आपके पास आउटर ट्यूब के अंदर सर्कुलेट करेगा और यहाँ पे आपके पास इधर से एंड देन C3 से आपके पास जो कोल्ड वाटर का एग्जिट है। अच्छा, अब इसके सेंसर्स के ऊपर आ जाए। वी हैव सीन इन द डायग्राम कि ST4, ST5 एंड ST6 आर द सेंसर्स ऑन द लाइक कोल्ड वाटर। सो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, ठीक है, आपके पास कोल्ड वाटर का इनलेट है C2, तो यहाँ पे आपके पास एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है। फॉर ईच टेम्परेचर सेंसर देयर इज अ फ्लैग ऑन इट, ST4, फ्रॉम वेयर यू कैन रीड विच सेंसर इट इज़। सो दिस इज ST4। सो ST4 से आपके पास कोल्ड वाटर एंटर होगा और ये इंटरमीडिएट सेक्शन में आपके पास एक और टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, दैट इज ST5। ओके, सो ST5 एंड यू कैन सी बेसिकली यहाँ पे आपके पास एक और टैप है, ठीक है। दिस इज द पाइप फॉर बेसिकली कि आपके पास अगर कोई इंट्रैप्ड एयर अंदर है तो उसको इसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं। टू रिलीज द इंट्रैप्ड एयर, दिस द वॉल्व एयर। तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट आपने क्या करना है कि इस वॉल को टैप को ऑन करके आपने जो इंट्रैप्ड एयर होगी उसको बाहर निकाल देना है ताकि कोई इंट्रैप्ड एयर ना रहे। रिलीज हो जाएगी एयर रिलीज एंड देन we'll move at this point and you can see the temperature sensor ST6 here at the cold water outlet and then again the wall and the इसके बाद यहाँ से C3 के बाद आप यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आप देख लें दिस वॉल इज क्लोज, राइट, बिकॉज यहाँ से आपके पास वाटर एंटर हो रहा था, तो ये जब वॉल क्लोज है तो पानी इस तरफ नहीं जाएगा, तो पानी इसी तरफ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास एग्जिट है और यहाँ से होता हुआ आपके पास सिंक में चला जाएगा इन द वाटर। और इसका जो पाथ है वो क्या हो गया आपके पास, इस तरह इसका पाथ जो है वो ओपन लूप हो गया कि आपके पास टैप वाटर आ रहा है और उसके बाद सिस्टम से होने के बाद, इक्विपमेंट से होने के बाद सिंक में आपके पास क्या हो रहा है, पानी रिलीज हो रहा है। सो दिस इज द ओपन चैनल ऑफ द कोल्ड वाटर। दिस इज फॉर द पैरेलल फ्लो। For the counter flow, what we have to do, we will keep the direction of the flow of hot water the same, ठीक है, and we will reverse the direction of cold water, ठीक है, यानी जहाँ से आपके पास हम उसकी डायरेक्शन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। For that we have four, you can see there are four walls here, control wall here. So right now these two walls are open, you can see, थोड़ा ग्रेट कर these two walls are open and these two walls are closed. So to make the flow counter, so what I will do, we will have to basically close these two walls. इन दो walls को आपने क्या कर देना है, बंद कर देना है, और ये जो दो walls आपके पास close थे, ठीक है, इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, open, right? Now you will see कि जब यहाँ से आपके पास cold water enter होगा तो वो right side पे जाने की बजाय left side पे जाएगा। तो जब लेफ्ट साइड पे जाएगा, ओके, लेफ्ट साइड पे आपके पास जाएगा तो ये वॉल क्लोज है, तो अब आपके पास जहाँ से कोल्ड वाटर का एग्जिट था वहाँ से बेसिकली एंट्रेंस, ठीक है, C3 से अब आपके पास कोल्ड वाटर एंटर होगा एंड देन फ्लोइंग थ्रू दी कॉन्सेंट्रिक पार्ट हीट एक्सचेंजर इन द आउटर शेल। तो आपके पास C2 से आपके पास क्या है, एग्जिट है, एंड C2 से एग्जिट होने के बाद यू विल यहाँ से C2 पे, यहाँ पे आ गया C2 पे, एंड देन यू कैन सी इट विल मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सिंक। ओके, so this is the parallel flow and the counter flow configuration. So what we have to do, you have to basically calculate the heat transfer between the hot and cold water. So for that, what you need using the sensible heat rate formula. We know from the metric Q dot is equal to m dot C delta T. You have to basically calculate the heat transfer of the by the hot water and the heat absorbed by the cold water, and then you have to calculate basically the difference, how much heat is basically waste, heat wastage calculate करने आपने कि जो एटमॉस्फेयर में heat release होगी वो कितनी है, and then you have to basically calculate the effectiveness of the heat exchanger and then the overall heat transfer coefficient of this particular type of heat exchangers. Okay, so the readings are available in the class material session, so you can look at that. Right now, basically the questions here is you can
calculate the mass flow rate from these two flow sensors, multiplying that by the density. To calculate the value of C in the of the cold water and the hot water, what we have to do, we have to take the inlet and the outlet temperature of the cold water, and we have to calculate the value of C at the average temperature using the value from the literature. And similarly, we have to calculate the average value of the heat capacity for the hot water using the literature. Okay, you have to read the value from the literature, and then the delta T you can get from the for the hot water you can read from ST1 and ST3. Okay, these are two temperature sensors installed at the inlet and outlet of the hot water. And for the cold water you need ST4 and ST6. These temperatures can be read from the control panel. Okay, right now I can see for the ST1, it's you can see here now the temperature has reached 44 degrees Celsius in the hot water tank. So the heater has been stopped. Okay, you can see that this LED has been switched off. Okay, ST1 is 41 and ST2 is again 41 and ST3 is 38. So the inlet and outlet difference of the hot water ST1 is 41 and ST3 is 38. Okay, for the cold water I need ST4 and ST6. ST4 the cold water inlet 33 and ST6 I can read 32. Okay, these are the readings for the counter flow configuration, because I have कि जो मैंने वॉल्स थे उनको मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बट दीज आर नॉट द स्टेबल रीडिंग्स, सो आई विल हैव टू वेट to get these readings stabilized. And again I'll note the reading ST1 and ST3 from here, and ST4 and ST6, and the hot water tank temperature is about 45. Okay, this is the way you have to perform these two experiments, the parallel flow configuration and the counter flow configuration, and then you have to using what we have studied in 3 lectures, you have to calculate the effectiveness and the overall transfer coefficient of these heat exchanger. Okay, thank you. Any question you can ask in the discussion session.